Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir. Okay, tell me what we discussed in last lecture. First we revise it, then we go further. Anyone remember what we discussed? Sir, we completed norm and inner products Yes. and Yes. exercise. Yes. In last lecture, we have defined the inner product space and norm for the Rn. Okay. And from that, we were discussed two theorems. Okay. Theorem number 1 and theorem number 2 regarding the inner product space. Yes or no, everybody? Yes, sir. Okay, so we Yes. yes, we continue with that. That means we go for the next. After defining norm and inner product space, there is a concept of limit. Okay, but for that limit, we have to understand the what is the open space, what is the closed space. Okay, then we go for that. Okay, so first we define that. So you can see on your screen. Okay, so geometry of the Euclidean space Rn, that is our first unit. Now we go for the subsets. Okay, we think about or we discuss about the Rn, how to define the distance in Rn and how we can define the inner product space and norm space. Now we go for the subset. Okay, everybody. So subset of Euclidean space Rn. We are talking about Rn only, so we go for the subset of that Rn. So we shall consider Rm cross Rm. Rm cross Rm को हम कैसे लेंगे? R is to m plus n. Okay, we always write down R is to m plus n in place of Rm cross Rn. Means यहाँ पर भी देखो आप n dimensional space है, यहाँ पर भी n dimensional space है. तो जहां पर भी आपको एग्जाम में इस तरीके से डिफाइन करके दिया है, दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नथिंग बट द R is to m क्रॉस R is to n. ओके एवरीबॉडी? Yes. Okay. Okay, Yes. and the meaning of this space is if x belongs to R raised to m, means अगर आप कोई x R raised to m में लेते हो, and if y belongs to R raised to n, that means second space से अगर आप R raised to n लेते हो, then each xy or every xy belongs to R raised to m plus n. Means xy जो है वो always belongs to R raised to m plus n से आएंगे. Okay, understand? Yes, sir. Okay, but keep in your mind the dimension of first set is Rm. Okay, R raised to m, that means m. So we can extend this x up to m, that means x1 comma x2 comma up to son xm, and we can extend y as the y1 y2 up to son yn. So whenever you write down xy in R raised to m plus n, it is nothing but x1 comma x2 up to son xm comma y1 comma y2 up to so and yn. Is it okay up to here, everybody? Sir. Okay, this is like this one. हम जैसे करते थे ऐसे a क्रॉस b अगर हम डिफाइन करते थे तो that means x belongs to a, y belongs to b, then we can say that the order pair xy belongs to a क्रॉस b. बोलते थे कि नहीं ऐसे हम? Yes. ओके, सेम तरीके से यहाँ पे हमने डिफाइन किया R raised to m क्रॉस R raised to n को. ओके, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ फंक्शन. ओके, हम फंक्शन के लिए जा रहे हैं, इसीलिए वी नीड इट. नाउ लेट a subset of R raised to m and b subset of R raised to n, then a cross b is nothing but the order pair xy where x belongs to a and y belongs to b, which is subset of R raised to m cross R raised to n, that is R raised to m plus n. मीन्स जो हम डिफाइन करते थे ऐसे ही, बट a जो है वो R raised to m में से आएगा एंड b जो है सबसेट ऑफ R raised to n होगा, एंड देन वी कैन डिफाइन दिस रिलेशन a क्रॉस b. इज इट ओके? Everybody, do you understand? Yes. Yes, sir. Any question? Any question? Okay. No, sir.
ओके देन नेक्स्ट वन. अब ये थोड़ा है ना, थोड़ा टोटली थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना. कहीं पर भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी. ओके, पाई ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई, दैट मीन्स प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. ओके, सो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ए आई बी आई, इट इज नथिंग बट अवर ओपन रेक्टेंगल. ओपन रेक्टेंगल मीन्स क्या हुआ, देखो फर्स्ट आई इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a1 b1 क्रॉस a2 b2 क्रॉस a3 b3 up to so on an bn, that is the open rectangular n r raised to m plus n. Okay, understand? Yes, sir. Okay, then same way if you define with close sign, product of I equal to 1 to n ai bi, that means a1 b1 cross close, okay, close a2 b2 and so on, close an bn, it is nothing but our close rectangle. That means that is the product of the all the elements of r raised to n, that is the closed rectangle. These are the notation, we are defining the notation for that, r raised to n. Okay, r raised to n के लिए हम notation define कर रहे हैं. Okay, everybody understand? Is it okay? Yes, sir. Okay. Yes. Ball, open ball जो बोलते हैं, ball b, ball of a delta, that means the distance is norm of x minus a less than delta, means delta जितना उसका variation है, that means x belongs to r raised to n, where norm of x minus a less than delta, then it is the open ball, means we are not including the boundary here, that's why it is open ball. और more than 3 dimension में उसको हम क्या बोलते थे, sphere बोलते थे, इसीलिए यहाँ पे sphere भी वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन we use always open ball ही उसको use करेंगे. okay, norm of x minus a less or equal to delta. Okay, everybody? Any doubt in open ball? No, sir. Okay, if we include the boundary, then it is our closed ball, that means less or equal to, okay, that means ball with a delta, close at a delta is equal to x belongs to r raised to n, where norm of x minus a less or equal to delta, that is our closed ball. और उसको भी sphere बोलते हैं, लेकिन complete sphere. okay, तो यहाँ पे closed ball उसको बोलेंगे हम. So this is the closed ball. Whenever we add the boundary, then it will be closed, and that's why we can say that it is the closed ball. Okay. Now next one is the extension of this one. That means product of I equal to 1 to n ai delta. Means you are taking variation into each number or each term with the delta. That means a1 minus delta, a1 plus delta, cross and so on, cross an minus delta, an plus delta. That means open rectangle with equal length of side. Means हमने उसकी sides जो है वो delta fix कर दिया हुआ है. That is the open rectangular with equal length of sides. It is denoted by product of I equal to 1 to n ai delta. Understand? Yes, Sir, sir. can you please explain again? Okay, okay. That means यहाँ पे देखो हमारा ओपन रेक्टेंगुलर क्या हो रहा था, ये वाला है ना, a1 b1 क्रॉस अप टू सो एंड an bn. अब मैंने क्या किया कि a1 को ही कॉन्सेंट्रेट किया विथ डेल्टा डिस्टेंस, दैट मीन्स a1 माइनस डेल्टा एंड a1 प्लस डेल्टा. ओके, देन क्रॉस a1 सॉरी a2 माइनस डेल्टा, a2 प्लस डेल्टा एंड सो ऑन. ओके, और लास्ट में आ जाएगा an माइनस डेल्टा कॉमा an प्लस डेल्टा. मीन्स here we have the distance is variation. Okay, distance is in variation, that means a1 b1 a2 b2. तो a2 and b2 इससे बड़े होंगे या फिर छोटे होंगे, we don't know what is the value of a2 b2, but we are fix it, means हम डेल्टा फिक्स करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स हो गया कि नहीं. Yes, sir. That means we can say that it is the open rectangle with equal length of sides. Okay. So, sir, generalization form should be like this: ai Yes. minus delta, Yes. ai plus delta. Yes, but this is when you require the fix
length, then you go with this. Otherwise, the general form is this one. If you have no restriction, then you can go with the open rectangle. But if you have the distance is fixed, then you go with the this one, pi of I equal to 1 to n ai delta. Okay? Okay, sir. मीन्स जब भी हमको डिस्टेंस फिक्स दिया है तब हम उसको डेल्टा को फिक्स कर देंगे और उसी अकॉर्डिंग हम उसका प्रोडक्ट डिफाइन करके देंगे. दैट इज अवर ओपन रेक्टेंगल विथ इक्वल लेंथ ऑफ साइड्स. नाउ गॉट इट जेवी? Yes, sir. So, sir, here we have a1 minus delta, a1 plus delta, up to n times multiplication. So, sir, can we write like this? Ki pi I is equal to 1 up to n, ai minus delta, ai plus delta. But if you write down in this way, then there is a problem. Why? Because okay, means you are saying about the notation. Yes or no? Yes, sir. Okay, no issue. You can define in that way also. That means ai minus delta, ai plus delta. You say this like this. Yes, sir. Then it's okay, no problem, no problem. It is not there, no problem. You can define in this way because both are the same. You can see general form and this one, then it is no problem. But here because a1 b1 यहाँ पे है, देखो a1 b1 है यहाँ पे, तो हमने यहाँ तो डिस्टेंस में ही लिया है ना, सब्सट्रैक्शन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. दिस इज ऑल्सो करेक्ट जेवी. ओके. Yes, sir. Okay. Then same way for the closed rectangle, if you have the fixed length, then you can define the closed rectangle in this way, product of I equal to 1 to n ai delta. These are the symbols only, okay, but the definition is here, so you can concentrate on definition and you can accordingly define the symbol also. Okay, so ai minus delta, a1 minus delta, a1 plus delta, cross up to so on, an minus delta, an plus delta. We include the boundary point, so this is the closed rectangle. So is there any doubt, any question in the notations? Anybody? Any? Sir. Okay. So whenever you see any notation of this one, then you have to think about the definition of itself. Okay, उसकी आपको definition के बारे में सोचना है, जो भी है, जहाँ पर भी हम theorem apply करेंगे वहाँ पे. Okay, then we go for the next. Okay, ये तो आपको पता है लेकिन we discuss it. Okay, तो यहाँ पे देखो next definition. Yes, next definition is a subset, a subset of r is to n. अब हम एक सेट को ओपन की बात कर रहे हैं, है ना. So a subset of r is to n is said to be open if for each a belongs to a, that means for each element belongs to a, there exists delta greater than 0 such that a belongs to ball a delta. That means this is your open ball. Yes or no? अभी हमने देखा ना, दिस डिनोट्स द ओपन बॉल विथ डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस डेल्टा. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes. ओके, विच इज सबसेट ऑफ ए. मींस अगर आपका बॉल, ओपन बॉल का कोई एक है, फॉर एग्जांपल ये आपका ए, ओके, एंड ये आपका, चलो साइन में इंक चेंज कर देता हूँ, दिस इज योर आर रेज टू एन. ओके, बाहर वाला आर रेज टू एन, दिस इज योर ए. ओके, ये आपका ए, ये दिखाई नहीं दे रहा है, ए. ओके, दिस इज योर ए. नाउ आई एम टेकिंग एलिमेंट ए फ्रॉम ए एंड आई थिंक अबाउट द ओपन बॉल, means neighborhood. You can say in 2 dimension neighborhood also, but here we are taking in open ball. So I am taking open ball which is also the subset of this one a, then you can say that it is the open. Understand everybody? Yes, sir. Okay, and the distance of delta is there. So any question in open set? Anybody? Open set in Rn, no? We are talking about open set in Rn.
एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव क्वेश्चन देन आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू अगेन, नो प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं पता चला है तो भी बताओ, तो हम फिर से डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीबडी? लेकिन आप जब तक नहीं बताएंगे और नहीं पूछेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस, एनीवन? ओके, आई थिंक यू हैव नो क्वेश्चन, यस और नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, थैंक यू। ओके, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट। अब क्लोज तो उसका उल्टा, ओके, टोटली उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स उसका जो कॉम्प्लेक्स मीन्स कंपोनेंट ले लेंगे हम, है ना, तो जो भी होगा वो हमारा डेफिनेशन हो जाएगा। दैट मीन्स अ सबसेट, सेकंड डेफिनेशन, अ सबसेट ए सबसेट ऑफ Rn इज सेड टू बी क्लोज। मीन्स जो ओपन नहीं होगा उसको हम क्लोज बोलेंगे। लेकिन हाउ वी कैन डिफाइन मैथमेटिकली? सो r⁴n में से उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। दैट मीन्स r⁴n माइनस a इज ओपन। मीन्स उसका जो मीन्स एक्सटीरियर पार्ट होगा वो अगर ओपन है तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। मीन्स उसका क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल ओपन के लिए हमने कैसे किया था? सो दिस इज योर r⁴n। ओके, नाउ आई एम टेकिंग a, सो दिस इज योर सेट a। मैंने ऐसे लिया है, चलो रेक्टेंगल फॉर्म में सेट को ले लिया। ओके, सो दिस इज योर सेट a। नाउ इफ यू कंसिडर अ पॉइंट a फ्रॉम ए, मैंने क्या लिया? ए बिलोंग्स टू ए ले लिया। ओके, अब इसका जो ओपन बॉल होगा, फॉर एग्जांपल आई ड्रॉ दिस वन। ओके, मैंने उसका ओपन बॉल ड्रॉ किया। सो आई ड्रॉ ओपन बॉल अराउंड ए विद द डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस डेल्टा। ओके, सो अगर ये ओपन है मीन्स ए बिलोंग्स टू बी ए डेल्टा। ओके, मीन्स ए बिलोंग्स टू बी ए डेल्टा होगा ओपन बॉल, और विच इज सबसेट ऑफ ए मीन्स वो उसी सेट में आएगा। देन वी से दैट इट इज द ओपन। बट अब क्लोज के लिए क्या करेंगे कि r⁴n है उसमें से a मीन्स अगर ये आप a ओपन है उसको निकाल देते हो तो दिस इज योर रिमेनिंग पार्ट। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. अगर वो ओपन है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? क्लोज, क्योंकि ये ओपन हुआ दैट मीन्स ये बाउंड्री उसके अंदर नहीं इंक्लूड होगा। अगर बाउंड्री इंक्लूड नहीं हुआ दैट मीन्स इट इज ओपन, सो वी कैन से दैट इट इज क्लोज। डन एवरीबॉडी? नाउ गॉट इट? Yes, sir. बोथ द डेफिनेशन आर क्लियर? मैं इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे आप बता दो। अगर आप नहीं बोल सकते तो मीन्स वहाँ पे चैट बॉक्स में आप रख दो। लेकिन क्लोज एंड ओपन आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। जैसे हम सोचते हैं ना 2 डायमेंशन में, वही है, सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ दैट है। सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे डिस्टेंस की बात आएगी वी डू विद दी नॉर्म, है ना, वहाँ पे हम नॉर्म लगाएंगे और उसको डिफाइन करेंगे। इज इट ओके एवरीबॉडी? आप यस आप बोलोगे ना तो मेरा भी डाउट क्लियर होगा कि आपको पता चला है कि नहीं। नहीं तो फिर मुझे क्वेश्चन होता रहता है कि इन लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। ओके एवरीबॉडी, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, thank you for your confirmation. Okay, now tell me how we can define the interior point in 2 dimension. किसी को याद है इंटीरियर पॉइंट कैसे डिफाइन करते थे? Sir, I know, but I don't know the proper definition. I know a concept. No problem, no problem. Concept is valid. Sir, if we have R square, then we define open ball a delta. Then open ball of a delta is a subset of A. तो देन उसके अंदर के जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। वेरी गुड, इट इज क्लियर। ओके, मीन्स क्या करना था वहां पे, हमको ए डेल्टा ओपन बॉल चाहिए एक तो। ओके, अगर वो ओपन बॉल है तो ओपन बॉल के अंदर के सारे जितने भी पॉइंट होंगे इट इज डिफाइंड एज द इंटीरियर पॉइंट। यस और नो एवरीबॉडी? यस। और ओपन बॉल के बाहर के जो होंगे दैट इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑटोमेटिकली।
ओके, अंडरस्टैंड? यस सर। एंड जो दोनों के बीच के इंटरसेक्शन में आएंगे, मींस वहां पे इंटीरियर में भी होंगे, एक्सटीरियर में भी होंगे, और वो दोनों के इंटरसेक्शन अगर आप करो तो क्या होना चाहिए बाउंड्री के लिए? Yes, sir. क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 5। नॉट इक्वल टू 5 मीन्स वहां पे दोनों का इंटरसेक्शन में जो भी पॉइंट आएंगे, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट लिया है, इंटीरियर पॉइंट लिया है, तो बाउंड्री क्या होगा कि जो बाउंड्री वाले सारे पॉइंट है वो कवर होने चाहिए। तो अगर वो कवर होते हैं देन यू कैन से दैट इट इज द बाउंड्री पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको सिंपल डेफिनेशन से मीन्स सिंपल तरीके से समझाओ तो यू कैन सी हियर, बहुत इजी तरीके। फॉर एग्जांपल दिस इज माय ओपन बॉल, ओके चलो इसको ओपन बॉल बोलते हैं। ओके, अब ओपन बॉल जो है उसमें यहाँ पे मेरा हो जाएगा एक्सटीरियर पॉइंट, अंदर वाले जितने हो जाएंगे वो इंटीरियर पॉइंट। अब बाउंड्री के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, ओके दिस इज माय पॉइंट, तो उसके अराउंड आपको एक ओपन बॉल लेना है, और उसके अराउंड ओपन बॉल लेंगे तो वो ओपन बॉल में कुछ इंटरसेक्शन में होंगे कि नहीं पॉइंट? यस और नो? इंटीरियर पॉइंट भी होंगे थोड़े और एक्सटीरियर भी पॉइंट थोड़े होंगे, है ना? बाउंड्री के लिए तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं? यस। है ना? तो अगर वो नॉन एम्प्टी है देन यू कैन से दैट ऑल दीज टाइप ऑफ पॉइंट, जो यहाँ पे जितने भी पॉइंट है उसको हम बोलेंगे बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि उसके अराउंड आपको ओपन बॉल लेना है। ओपन बॉल में इंटीरियर भी पॉइंट आएंगे, एक्सटीरियर भी पॉइंट आएंगे। Then if you have the intersection not equal to 5 then you can say that it is the boundary point. Okay, so mathematically we go with this, let a subset of r raised to n, let x belongs to r raised to n, मैंने x लिया है r raised to n में से, then x is called, देखो यहाँ पे मैंने a में से x नहीं लिया है, do you understand? Student, do you understand? बोथ आर द डिफरेंट, है ना? ए सबसेट ऑफ आर एन लिया मींस ए आर एन का सबसेट है, लेकिन एक्स मेरा कहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। देखो ये मैंने एक्स बिलोंग्स टू ऐसा नहीं लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू ए सबसेट ऑफ आर एन ऐसे मैंने मेंशन नहीं किया है। देखो मैंने क्या लिया, कोई एनी पॉइंट x बिलोंग्स टू r रेज़ टू n के लिए हम डिस्कस करिए थ्री थिंग्स। ओके, देन x इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ a इफ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that x belongs to b x delta which is subset of equal to a, मीन्स अगर वो कोई ओपन बॉल में है और वो ओपन बॉल a के अंदर है, मीन्स a का सबसेट है और a खुद है, then you can say that it is the interior point. Understand mathematically everybody? Yes. Okay, now exterior point of a if there exists delta greater than 0 such that x belongs to open ball x delta subset or equal to a complement, means अगर वो बाहर चला गया, ए के बाहर कॉम्प्लीमेंट में चला गया, देन इट इज द एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, एंड बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 ए इंटरसेक्शन बी एक्स डेल्टा नॉट इक्वल टू 5, मींस ए लो और ओपन बॉल लो, वो दोनों का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट लो और ओपन बॉल लो, दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया से, देखो अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे फिर से बड़ी फिगर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। यस, ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यस येलो लाइन, यस देखो दिस इज माय आर, दिस इज माय आर। ओके, मैंने यहाँ पे फिर से वही हो रहा है, यस यस, ओके दिस इज माय आर। ओके, अब आर से मैंने एक सबसेट ले लिया है ए, तो उसके लिए मैंने फॉर एग्जांपल आई यूज दिस कलर, ओके दिस इज माय ए। अब आई हैव द थ्री पॉसिबिलिटी विच आर नंबर 1, चलो नंबर 1 पॉसिबिलिटी क्या है कि x जो है, x के लिए, हाँ x बिलोंग्स टू मैंने r रेज़ टू n, दिस इज योर r रेज़ टू n, सॉरी r रेज़ टू। अब x के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। नंबर 1 आइदर x इज हियर,
either x is here and either x is here. Yes or no, everybody? Yes. है ना? Yes. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई x, यहाँ पे मैंने x लिखा है. अब सेकंड पॉसिबिलिटी इज माई आई हैव द x हियर एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज x is this one. Okay, so I have these three different possibilities of x, and according that we can define our interior, exterior and boundary point. Okay, अब यहाँ पे देखो इंटीरियर के लिए उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप x का कोई ओपन बॉल लेते हो, मीन्स कोई ओपन बॉल a का कोई, फॉर एग्जांपल आई टेक दिस ओपन बॉल. ओके, मैंने ये ओपन बॉल लिया है और वो x वो ओपन बॉल में है और दैट इज द सबसेट ऑफ ए है, देन यू कैन से, और ए भी हो सकता है. ओके, आप बड़ा ओपन बॉल ले लो तो वो ए भी हो सकता है. तो इफ इट सेटिस्फाई दिस देन यू कैन से दैट इट इज द इंटीरियर पॉइंट. इज इट ओके नाउ? Yes. सेकंड थिंग एक्सटीरियर के लिए. अब एक्सटीरियर के लिए क्या होगा कि अगर आप x का अगर या फिर आप बाहर का कोई एक बॉल ले रहे हो ओपन बॉल और उसमें x है और जो ओपन बॉल है ये a के कॉम्प्लीमेंट में, सो दिस पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ a. यस और नो? Yes. सो अगर वो कॉम्प्लीमेंट में चला जाता है देन यू कैन से दैट इट इज द एक्सटीरियर पॉइंट. x इज एक्सटीरियर. ओके, एंड अगर यहाँ पे आप लेते हो तो यहाँ पे देखना ये बाउंड्री वाला थोड़ा समझना है. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द एनी ओपन बॉल, ओके, बी एक्स डेल्टा बी ए डेल्टा, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल दीज आर द इंटीरियर पॉइंट्स. यस और नो? Yes. एंड दीज आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स. ओके, तो ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हो गए. तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा देखो, यहाँ पे नो 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 सॉरी, माय मिस्टेक. यस, वी आर नॉट डिफाइनिंग ऑन दी आर एन, है ना, ए के लिए डिफाइन कर रहे थे तो आर एन पे नहीं आएगा वो, माय मिस्टेक, सॉरी. ए के ऊपर आएगा, है ना, यहाँ पे आएगा, सॉरी. ओके, सो आर एन पे नहीं आएगा वो, ए के ऊपर आएगा. सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी आर डिफाइनिंग दी दिस वन. ओके, सो दिस इज योर एक्स. तो यहाँ पे अगर ये आपका इंटीरियर है तो थोड़े बहुत एक्सटीरियर भी होंगे, तो दिस इज योर एक्सटीरियर पॉइंट्स. ओके, तो अगर यहाँ पे आप ए इंटरसेक्शन विथ बी ए डेल्टा लेते हो या फिर ए कॉम्प्लीमेंट जो बाहर वाले उसके लिए इंटरसेक्शन बी ए डेल्टा, आई थिंक देयर इज सम एलिमेंट्स. यस और नो? Yes. Yes. That means we can say that both are not equal to phi, then you can say that it is the boundary point. Okay, so these are the three definitions, useful definition in Rn. So is there any doubt, any question in this slide? Anybody? Open, close, interior, exterior and boundary. No, sir. Anybody? No, sir. Okay, then next one. The set of all interior points of A is called the interior of A and it is denoted by interior A. Means अगर कोई all points of A अगर आप लेते हो is called the interior of A और उसका सिंबल है interior of A. सारे पॉइंट अगर इंटीरियर ले लो उसका एक सेट बना दो, है ना, और उसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ ए. अगर सारे पॉइंट का एक सेट बना दो एक्सटीरियर पॉइंट का, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय EXT ऑफ ए. एंड बाउंड्री के लिए सिमिलरली द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ए एंड इट इज डिफाइंड बाय BDRY. द सिंबल इज BDRY ऑफ ए. Okay, so we have three different symbol: INT of A, EXT of A and BDRY of A. Interior of A, exterior of A and boundary of A. These all are the sets of the interior points, exterior points and boundary points. So any question in this slide? No, sir. No, sir. Okay, then this is the lemma which was already learned in your
BSc level with small dimension. Okay, prove that following is in Rn. Every open ball is a open set. Can we prove this? कर सकते हैं कि नहीं? इसमें से मैं MCQ पूछता हूँ, है ना? Yes, sir. हाँ, ये 9 जो है वो आपको होमवर्क में ही दे रहा हूँ, है ना? ट्राई फॉर दिस. आज के लिए होमवर्क यही है ना? और नहीं मिलता है तो ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं इसमें से MCQ पूछता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना. एवरी क्लोज बॉल इज ए क्लोज सेट. दिख रहा है सारे ट्रिवियल ही है ना? आपको लग रहा है, देखो ओपन बॉल है तो ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, वो ओपन सेट ही हो जाएगा. एवरी क्लोज बॉल इज ए क्लोज सेट. ईच ओपन रेक्टेंगुलर इज एन ओपन सेट. ओके, मींस जो हमने पाई ऑफ डिफाइन किया था ना, पाई ऑफ आई इक्वल टू 1 2 एंड ai bi, then it is the also open set. Okay, then every closed rectangle is closed set. Fifth statement is let a subset of R is to n, then a क्या है ये? Complement. नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये. देखो a यहाँ पे सर्कल है, इज ओपन मीन्स अंदर इंटीरियर, है ना? a इंटीरियर इज ओपन एंड a बार इज क्लोज एंड बाउंड्री ऑफ a इज क्लोज. मीन्स अगर बाउंड्री लेते हो तो पर भी क्लोज बोलते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? डन. ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये. ए कॉम्प्लीमेंट तो ए इस तरीके से हम डिनोट करते हैं. ओके, डन. Yes, sir. Okay, then a subset of R is to n, then a circle intersection with boundary of A is equal to 5. इसको कुछ बोलते हैं लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है. इसका स्पेशल नेम है. ए डॉट तो नहीं है, इसको ए सर्कल ही ज़्यादातर तो मेरे सर बोल रहे थे, तो पर भी एक बार देख लूँगा. ओके एवरीबडी, इसका नोटेशन तो है लेकिन ए सर्कल ही बोलते थे सर तो, लेकिन देख लेंगे हम. ए सर्कल इंटरसेक्शन विद बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू 5. And seventh one is the let A be an open set in Rn and let A belongs to A, then there exists a delta greater than 0 such that open ball be A delta subset of equal to A and product of I equal to 1 to and AI delta is also subset of A. Means अगर आप कोई एक open set लेते हो Rn में और उसी में से कोई एक एलिमेंट लेते हो तो we get always delta greater than 0 such that ये both are the true. That means open ball subset of A and product means open rectangular subset of A. Okay, understand? Seventh statement, what is the meaning of that? Everybody, open है तो always ये दोनों true होंगे, close है तो यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है. Understand? Yes, sir. Okay, then for each A belongs to R raised to n and each delta greater than 0 means अगर आप कोई A belongs to R raised to n लेते हो, delta greater than 0 लेते हो, there exist means यहाँ पे दो चीज एक साथ हुई, that means delta 1 and delta 2 is there such that product of I equal to 1 to n AI delta 1 which is subset of B, that means open ball A delta and B A delta 2 subset of product of I equal to 1 to n AI delta. मीन्स यहाँ पे देखो डेल्टा 2 जो है वो डेल्टा 1 से क्या है दिख रहा है, क्या होगा बताओ? कुछ रिलेशन है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 के लिए? Is there any relation between delta 1 and delta 2? नो, है ना? यहाँ पे कुछ नहीं दिया है. देखो अगर होता तो यहीं पे दिख लेते हैं कि डेल्टा 1 इज लेस देन डेल्टा 2 या फिर डेल्टा 2 इज लेस देन डेल्टा 1 अगर होता तो, बट देयर इज नो एनी statement for that. Okay, so simply you have to think about delta 1. Product of delta 1 is subset of open ball and ball open ball with delta 2 which is subset of product of AI to delta. Means यहाँ पे दोनों साइड से डेल्टा की ओर जाने के लिए उन्होंने बोला है. That means इक्वल टू साइन भी हम लगा सकते हैं बाद में अगर डेल्टा के लिए ट्रू है तो, लेकिन इट इज नॉट ट्रू.
ड्यू टू दी स्टेटमेंट नंबर 8. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. अगर किसी को प्रूफ नहीं पता चलता है तो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल नॉट आस्क इन दी एग्जामिनेशन. बस दीज आर दी स्टेटमेंट्स. ओके, ये स्टेटमेंट्स है RN के लिए, ओपन सैट, क्लोज सैट, उसके लिए. डोंट वरी अबाउट इट, इतना हेक्टिक मत लेना, पैनिक भी मत बनना. अगर इफ यू ट्राई फॉर दैट एंड इफ यू प्रूव दैट, देन वी विल चेक और वी विल डिस्कस. अदरवाइज डोंट गो फॉर दैट, बट you have to remember these statements. Okay, don't worry about it. Next, 9. Sir, A circle is known as a set of all interior points of A. कौन सा? इधर हमने बात की थी ना A सर्कल वाला, हाँ उसका मीनिंग ये होता है कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ A. हाँ, यस यस, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए. हाँ सही है, उसका मीनिंग यही है. इसलिए तो यहाँ पे ए बोला ना. ओपन कब होगा देखो यहाँ पे, लेकिन उसका कुछ सिंबल के नेम, जैसे हम ए पर्प बोलते हैं, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, तो इसके लिए कुछ नेम होगा. जयवी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ. इसका मीनिंग तो सही है कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स. ओके, उसको यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे उसको, लेकिन यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अभी डिफाइन किया था ना, इंटीरियर ऑफ ए. लेकिन इसको जैसे हम ए कॉम्प्लीमेंट है, ए पर्प है ना, तो ऐसे कैसे बोला जाता है, इस तरीके से मैं सोच रहा था. जेवी, ओके, यस सर. मीनिंग सही है आपका, इट इज ट्रू. और सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, इट इज ट्रू. बट इसको ए सर्कल ही क्यों लिखा और उसको सर्कल की जगह पे दूसरा कुछ बोला जाता है कि नहीं, वी विल डिस्कस इट. ओके, वो देखना पड़ेगा. डन. ओके, नेक्स्ट 9. The set x belongs to R raised to n 0 less than x1 and 0 less than x2 less than x1 square is an open set in R2. देखो R2 के लिए आया, मीन्स अगर आप x belongs to R2 लेते हो ना, x is equal to x1 x2 है and x1 is greater than 0 and x2 is less than x1 square, then it is always open set in R2. Okay. So is there any doubt, any question in this slide? Anybody? Try for this, otherwise don't be panic, है ना. हम इसको प्रूव नहीं करेंगे और मैं एग्जाम में भी नहीं पूछूंगा. Don't worry about it. Okay, everybody? Yes, sir. Yes, sir. स्टेटमेंट देख के ही भयंकर लग रहे हैं, लेकिन सिंपल है, कोई है नहीं. लेकिन जो नहीं जानते हैं, डोंट वरी अबाउट इट. आप थोड़ा सा भी पैनिक बनिए, है ना. सिर्फ इसमें से मैं MCQ पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ओके, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स. चल आगे बढ़े. किसी को डाउट नहीं है ना, आगे जाए कि नहीं? Yes, sir. Okay, what about others? I want confirmation from all the student. No Yes, doubt. sir. Yes, sir. No doubts. Okay, okay, thank you. Okay, next limit की ओर चलते हैं, limit and continuity. Okay, so the notation f from Rn to Rm. Okay, ये जो notation है हम बार बार यूज करेंगे. That means R raised to n to R raised to m. The dimension of this one is n and this one is m. Indicates a function from Rn to Rm. Then R raised to n is called the domain. वो तो हमको बताइए. This is the domain. Sorry. Yes, this is your domain. जैसे हम A to B लिखते थे ना, ऐसे ही लिखना है यहाँ पे domain, and this is your codomain. वो तो पता ही है ना. तो sometimes we shall also take function f from A tends to B. अब कभी हम क्या करेंगे, इसका सबसेट लेके भी हम काम चलाते हैं. दैट मीन्स A सबसेट ऑफ Rn and B सबसेट ऑफ Rn, then we can write down f from A to B. This is also we can do that. Okay, and third possibility is C subset of A, D subset of B, then f of C हम ऐसे भी डिफाइन करके दे सकते हैं. That means f of C is equal to y belongs to B, y is equal to f of x for some x belongs to C, f of x, x belongs to C. These are the images, है ना. C की इमेज है यहाँ पे हम इंडिकेट कर रहे हैं. And f inverse D कैसे लिखेंगे? So x belongs to A and f of x belongs to D. Okay, क्योंकि ये D में जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो A में नहीं आएगा, है ना, इसीलिए. Okay, everybody understand? Yes, sir. Yes. Yes. So these are the notation. We are using this in next definition, so we can see here. Okay, any question, any doubt in this slide? Please confirm yourself. No, sir.
जयवी, Sir. okay. What about others? Anirudh? No, sir. ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, अब जैसे हम एलजीब्रा जानते हैं फंक्शन के लिए, सारे फंक्शन के एलजीब्रा ये स्लाइड में हमने डिफाइन किए हुए हैं, है ना। एफ एंड जी के रिलेशन में जो R2 के लिए ट्रू था वो इसके लिए है कि नहीं, वी आर डिस्कसिंग दैट। ओके, देखो यहाँ इफ एफ एंड जी आर फंक्शन फ्रॉम Rn to Rm, ओके, देन f प्लस जी, f माइनस जी, एफ जी एंड एफ डिवाइड बाई जी, ओके, ये सारे एलजीब्रा है। तो एफ प्लस जी करेंगे तो डिफाइंड है कि नहीं, यस। एफ माइनस जी इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर दिस स्टेटमेंट Rn to Rm, ओके, देन एफ इंटू जी इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर Rn to Rm एंड एफ डिवाइड बाई जी। बट ये दोनों तब होंगे जब m इज इक्वल टू 1 है। दिस इज द बिग थिंग्स, दैट मीन्स एफ जी R to R है, सॉरी Rn to R है, then you can find f into g and f divided by g. Otherwise you cannot discuss the product and division of the function. Is it okay? चलो फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो मेरे पास f एंड g है, चलो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यस, आई हैव f एंड g फ्रॉम Rn to Rm, ओके। अगर मैं f प्लस जी करता हूं देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। f माइनस जी करता हूं देन इट इज ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम। बट इफ आई गो फॉर f इंटू जी, तो f इंटू जी क्या होगा, ये तभी सेंस होगा या फिर तभी डिफाइन होगा जब ये Rn टू R है, ओके, दैट मीन्स m इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड? Yes. Yes. क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो स्केलर की ओर चल रहा है, मींस कोई एक वैल्यू ही देगा, और अगर कोई वैल्यू देता है दैट मींस वी कैन से दैट इट इज फ्रॉम R। अगर वो वेक्टर देता है, ये दोनों में क्या होगा, आप अगर आंसर फाइंड करेंगे ना तो वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, इसका भी वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, दैट मींस वी कैन से दैट इट इज Rn to Rm also। बट व्हेन यू गो फॉर प्रोडक्ट देन इट गिव्स अस वन वैल्यू, फॉर एग्जांपल 3 देगा या फिर 4 देगा या फिर 10 देगा, है ना, इसे कोई टेंड्स टू वन वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू जाएगा, इसीलिए इट मेक सेंस व्हेन m इज इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सिमिलरली फॉर f डिवाइड बाय g, ओके, उसके लिए, लेकिन यहां पर भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि g शुड बी नॉन जीरो, ओके, देन इट ऑल्सो मेक सेंस व्हेन f एंड g बोथ आर फ्रॉम Rn to R। Done? Understand? Everybody? Yes, sir. Sir. Yes. Now next one. If f from Rn to Rm, then we get m real valued function. Means अगर मैं यहाँ पे f from, देखो यहाँ पे f from Rn to Rm ले रहा हूँ तो क्या लिखा था, यस, m रियल वैल्यूड फंक्शन, यस। तो जो यहाँ पे है तो f का जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, f हम डिफाइन करेंगे f1 f2 अप टू सो एंड fm, यस और नो? Yes, sir. So this will comes from R, this is also comes from R, and this is also comes from R. That means you can say that all are the real function and all are the comes from real number R. That means यहाँ पे लिखा देखो, then we get m real valued functions fi, देखो यहाँ पे fi which is Rn tends to R, which are called the components of f, जैसे हम लिखते थे ना f of x y, है ना, सो f of x y इज इक्वल टू जो भी आता था हम लेते थे वो, तो यहाँ पे x कंपोनेंट बिलोंग्स टू R था, यहाँ y कंपोनेंट इज आल्सो बिलोंग्स टू R था कि नहीं, फ्रॉम R टू R है तो R2 टू R, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो ये जो x था उसको क्या बोलते थे, फर्स्ट कंपोनेंट, y था उसको क्या बोलते थे, सेकंड कंपोनेंट। तो सिमिलरली वी कैन डिफाइन द m components, means different m components we can define for that function f के लिए, जब r is to n to r is to m है तब।
Is it okay up to here, everybody? Yes. Yes, sir. ओके और देखो उसकी डेफिनेशन नीचे लिखा है. ऑन द अदर हैंड इफ वी हैव m रियल वैल्यूड फंक्शन, फॉर एग्जांपल g1 g2 अप टू gm, rn टू r है, then we get a valued vector valued function f from rn to rm defined as f of x is equal to g1x comma g2x comma up to gmx. All are the functions, real function. In this case the ith component function of f is nothing but the gm. It is true. Is it true, student? उसका ith component क्या होगा? gi होगा ना? Sir. Do you understand, everybody? Yes, sir. है ना? थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ा आपको नहीं पता चलता है तो यू कैन टॉक विद मी, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो जाता है कभी कभी. सो यहाँ पे कोई डाउट इस स्लाइड में किसी को भी? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, that means you are understand. Okay, next definition, limit. Okay, yes, next definition is limit. देखो इसको कंपेयर करना हमारे सेकंड एंड थर्ड डायमेंशन के लिए, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. देखो लेट f फ्रॉम rn टू rm मीन्स हमने फंक्शन लिया rn टू rm. लेट a बिलोंग्स टू rm मीन्स हमने एक पॉइंट भी लिया rn में से, फर्स्ट डोमेन में से. लेट b बिलोंग्स टू r रेस्ट टू m, दैट मीन्स को डोमेन में से. देन वी से दैट b इज द लिमिट ऑफ f एट द पॉइंट a. ओके, एक पॉइंट पे अगर लिमिट आपको डिफाइन करना है हायर डायमेंशन में, then for every epsilon greater than 0, this is the common statement. There exists delta greater than 0, this is also common statement, such that 0 less than, वहां पे हम क्या लिखते थे, मॉड्यूलस ऑफ x minus a less than delta, but here norm is introduced here in higher dimension. So norm of x minus a less than delta implies norm of f of x, means for every x, okay, f of x minus b less than epsilon. In this case we shall write limit x tends to a, f of x is equal to b. So this is very simple definition. If you compare then it is simple, but if you make complicated then it is not understandable. So any doubt in this definition, everybody? No, sir. No, sir. तो यहाँ पे अगर हम सोचे तो यहाँ पे इस हिसाब से मैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर r raised to n, दिस इज योर r raised to m, and now you are defining a function f. Now you have the point a from r raised to n and b from r raised to m. Then the limit of f will be b, okay, at point a if it satisfies these two norm. That means every epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that 0 less than norm of x minus a less than delta implies norm of f of x minus b less than epsilon. Okay, now I give you second homework, how we can define the continuity. चलो कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा ही चेंज आएगा इसमें, यस और नो एवरीबॉडी? चलो टू डायमेंशन में बताओ मुझे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी टू डायमेंशन में. आई थिंक दिस वन, ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, क्या था, 0 लेस देन x माइनस क्या था, a less than delta implies f of x, लिमिट में l आता था और यहाँ पे f of a आएगा, यस और नो, सॉरी एप्सिलॉन, यस सर. है ना. तो सेम डेफिनेशन हम अगर हायर स्टैंडर्ड में, हायर डायमेंशन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्म आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से नॉर्म आ जाएगा. तो देखो नेक्स्ट डेफिनेशन इज दिस,
यस यू कैन कंपेयर दिस थिंग्स। देखो मैंने इसीलिए पहले आपको यहाँ पे डिस्कस किया एंड देन वी गो। देखो 2 डायमेंशन में हम ऐसे लिखते थे, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। ओके यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा 2 डायमेंशन में, एक्स वाई जेड आएगा तो 3 डायमेंशन में। सो यहाँ पे देखो लेट एफ Rn tends to Rm and let A belongs to Rn, then we say that f is continuous at a point A if every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that norm of x minus a less than delta। ये तो लिमिट की डेफिनेशन में भी था, सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है। दैट इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ f of x minus f of a मीन्स वो पॉइंट पे सेम वैल्यू हो रहा है लिमिट और वो पॉइंट पे, then we can say that it is continuous। So that's why norm of f of x minus f of a less than epsilon, and in this case we can say that limit x tends to a, f of x is equal to f of a। So is there any doubt, any question in limit and continuity, everybody? No, sir. Okay, so now this is for today। So is there any doubt, any question in today's session, everybody? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so good day, take care, bye।